Okay, welcome back, friends. We saw till now that the problem of unemployment is so serious. We also saw the reasons for unemployment in India. Now we are going to see about the measures which have been taken or which should be taken to reduce unemployment. जो solution है, right, it is very easy to get the solution from the reasons itself. So from the reasons it will be easier to find out its solution. सिंपल बात है ना कि कारण क्या है, अगर पता चले तो आप उसको कारण पे फोकस करो, उसको रिमूव करो एंड सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा. एंड सी वी नो कि अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, वो सोशल, पॉलिटिकल, मॉरल, साइकोलॉजिकल, सब इज अ बिग इशू, राइट. सो in India, right from the first fire plan, one objective was to reduce unemployment. Lekin from the 5th and 6th fire plan onwards, the prime objective is the reduction of unemployment. In the 8th fire plan, it was thought to make right to education, a right to employment as a fundamental right, just like the right to education, right? And changes could be made in the constitution, but unfortunately it could not be materialized. Yeah, but it is still clear that to provide appropriate employment opportunities, that is the prime responsibility and prime aim of our country. So what steps can be taken? Right, let's talk of the steps. Very first step is of population control. बार बार मैं बोलता हूँ ना कि हमारा पॉपुलेशन ही हमारे हर प्रॉब्लम का मेन कारण होगा. सो इसको कंट्रोल करो, आप अनएम्प्लॉयमेंट को आप आराम से कम कर पाएंगे, राइट. सो इफ द नंबर ऑफ growth rate of population comes down, let's see, the rate of population growth rate will come down and the high rate of labor supply also will reduce. So number of job seekers will reduce, and on the other hand, because of population control, resources also will become surplus. The government information programs चलाती है, campaigns करती है, so to make people aware that a small family is a good family, that to control population. So if less people are there, more resources will be there. There will be more capital investment and more employment opportunities. Population control अगर हो गया तो long term में the productive age group, that's 15 to 64 year, can be placed appropriately. आप आराम से उनको जॉब दे पाएंगे. चलो second reason अगर देखें, second solution, not reason, second solution would be to increase in the rate of economic development. We saw in the previous videos that after independence, in the initial year of planning, 1950s से 1980s तक हमारा growth rate 3 to 3.5% था, not enough. उसके बाद 1991 के बाद हमने 7.5 to 8.5 तक, even 9% तक growth rate हमने achieve किया. Right, so we have to develop at a higher growth rate, around 8% and above. कॉन्स्टेंटली ईयर ऑन ईयर. ऐसा नहीं कि एक साल 8% किया दूसरे 2 साल 5% पर आ गए, वो नहीं चलता है. 8% एंड अप वी हैव टू ग्रो आवर इकोनॉमी एवरी ईयर. और उसके लिए हमें वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा. एफर्ट शुड बी मेड टू इंक्रीज कैपिटल इन्वेस्टमेंट विद इन पब्लिक, प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर. सिर्फ इंडस्ट्रीज पे फोकस नहीं, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हमें ग्रोथ लाना पड़ेगा. हमें एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट ऑल्सो शुड बी केप्ट हाई. वी हैव टू डेवलप एग्रीकल्चर ऑल्सो. ग्रीन रिवॉल्यूशन का बेनिफिट एवरी स्टेट को मिले, हर स्टेट को मिले, वो हमें करना पड़ेगा. सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर हमारा हाई हो तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो विल इंक्रीज एंड प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट शुड बी सॉल्व. ओके, द नेक्स्ट सोल्यूशन कैन बी employment oriented planning. जो planning करो तो the planning should now be focused on creating more employment.
we saw earlier कि second 5-year plan onwards, importance was given to development of public sector as the key to basic industries. So capital intensive industries were developed. और ये जरूरी भी था ना, we saw कि for strong foundation of industrialization it was necessary. But in present situation, employment oriented planning is very important. That is why state should encourage consumer goods and labor intensive industries, small and medium scale industries and business and trade, animal husbandry, dairy development etc. should be encouraged, right? So capital intensive and labor intensive techniques के बीच में coordination गवर्नमेंट को करना पड़ेगा और एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा कि कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री तो चाहिए ही चाहिए, हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाला इंडस्ट्री चाहिए ही, एट द सेम टाइम हम लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री को भी हम अगर एंकरेज करेंगे तो ये बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगे. और खास करके विलेज लेवल पे आप यू कैन ऑलवेज फोकस ऑन लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज, एंड ये सारे से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज काफ़ी बढ़ेंगे. इसके लिए हमें एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन भी देना पड़ेगा. आवर प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है वो भी अनएम्प्लॉयमेंट का के लिए जवाबदार है. वाई? बिकॉज प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन ओनली प्रोवाइड्स बुकिश नॉलेज, पोपटिया ज्ञान, एंड प्रोड्यूसेस क्लर्क्स. सो मैनेजमेंट या कॉमर्स के ग्रेजुएट होने के बाद या साइंस ग्रेजुएट होने के बाद भी आदमी केपेबल नहीं है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिकॉज उसके पास सिर्फ बुकिश नॉलेज है. इंजीनियरिंग की डिग्री पढ़ने के बाद भी उसको मशीन खोलना नहीं आता है. मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद भी या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करने के बाद भी उसको शायद ऑटोमोबाइल को पूरा खोल के वापस असेंबल करना नहीं आएगा. सो बेसिकली बुकिश नॉलेज के कारण अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, बिकॉज इंडस्ट्री को ऐसा आदमी नहीं खपता है, इंडस्ट्री को ट्रेन आदमी चाहिए. सो इट इज नाउ नेसेसरी to give vocational education in the field of trade, commerce, business, agriculture and other fields. Actually future में कौन से फील्ड में लोगों की कमी पड़ने वाली है, ऐसा मैन पावर प्लानिंग करना पड़ेगा. सो इफ गवर्नमेंट डज प्रॉपर प्लानिंग के फ्यूचर में ये अलग अलग सेक्टर में इतने सारे जॉब्स क्रिएट हो सकती है, या फ्यूचर में हमें ये सेक्टर में बहुत सारे नया अपॉर्चुनिटीज होंगे, तो अब अभी से ही फ्यूचर के लिए आप लोग तैयार करेंगे, करिकुलम में चेंज लाएंगे. यू विल इंक्रीज द करिकुलम, यू विल मेक चेंजेस इन द करिकुलम, ताकि हमारा जो बच्चे हैं वो एम्प्लॉयमेंट के लिए रेडी हो. दे आर रेडी फॉर द फ्यूचर. फ्यूचर रेडी हमें बच्चों को पैदा करना है, बच्चों को तैयार करना है, पैदा नहीं तैयार करना है. हमें उनको एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन देना है. एजुकेशन सच दैट वो जिस दिन उनके हाथ में डिग्री आए वो दिन से वो नेक्स्ट डे से वो काम कर सके. दे आर रेडी टू वर्क. सो अ रिवॉल्यूशनरी चेंज इन द एजुकेशनल फील्ड इज नेसेसरी. न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2015 के तहत गवर्नमेंट कुछ प्लान कर रही है. इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट्स के बीच में गवर्नमेंट कोलैबोरेट कर रही है ताकि वोकेशनल एजुकेशन बढ़ाया जा सके. इंडस्ट्री को कैसे लोग चाहिए, ऐसे ही बच्चों को आप ट्रेन करो इन द इंस्टीट्यूट्स. तो ये लिंकेज बहुत जरूरी है. ओके, आई थिंक सो. लेट अस वी कैन डू वन मोर टॉपिक, द डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. राइट, सो अनएम्प्लॉयमेंट कम करना हो तो विलेज लेवल पे कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलप करो. Why? Because these industries, they have a capacity to create employment with low investment. Right? With low investment. You can see, same capital के साथ small industries can create 7.5 times more employment than big industries. तो अगर एक बड़ी इंडस्ट्री 5,000 लोगों को काम दे रही है, वही इतना ही रोकान में, इतना ही इन्वेस्टमेंट से जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो 5 की जगह पे 35,000 लोगों को काम देगा, 7.5 टाइम्स ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देगा. तो इसी इंडिया जो है ऐसे भी कैपिटल स्कैर्स है एंड लेबर इंटेंस कंट्री है ना.
हमें बस लेबर की कमी नहीं है, पैसों की कमी है, कैपिटल की कमी है. So development of cottage and small scale industries should be accepted as the best alternative and special initiative should be taken for its development. तो हमारे इंडस्ट्रियल पॉलिसी में भी ऐसे ही हमें पॉलिसी एडॉप्ट करना पड़ेगा कि डेवलप स्मॉल स्केल सेक्टर, प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन गुड्स शुड बी रिजर्व्ड फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ताकि ऐसे इंडस्ट्री भी डेवलप हो सके. And these industries should be provided monetary, technical and managerial help by the government. Okay, now next जो solutions है we'll do in the next video. Okay, so meet you then, bye.